Hello. Okay, Assalamu alaikum. इस बेटा अस्सलाम वालेकुम सुन सकती हैं आप मुझे? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आपकी आवाज़ आ रही ओके, ठीक है, आपकी भी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ वॉइस क्लियर है आपको? जी मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है। ओके, now as per the previous syllabus of 2210, we have paper 2 section 2 having its weightage 40% and marks 50 marks. Okay, so this section is related to algorithm designing, problem solving, flowchart tracing, pseudocode concepts, along with their programming concepts, or some pseudocode terms definitions, including database also. And paper 2 consists of two sections, section A and section B. And section A is related to pre-release material, okay, having 20 marks. Similarly, we have another section in paper 2, section B, which is related to pseudocode writing, flowchart, trace table, database, or some unseen questions related to comparison. Okay, now let's start the problem solving with the concept of algorithm designing. Okay, now can you see the shared screen? इस बेटा आप स्क्रीन देख सकती हैं सर क्लियर। और प्रेजेंटेशन स्लाइड आपको नजर आ रही है? हेलो बेटा, आप मुझे सुन सकती हैं? आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड नजर आ रही है? नहीं सर, सिलेबस आ रहा है। जी, अब बताइए। जी बेटा, अब आ रही जी है सर, ना? आ रही है। ओके, तो सबसे पहले आपको एल्गोरिथम डिजाइनिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिजाइनिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना होगा? आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, and we have different types of operators like arithmetic operators, assignment operator, relational operators, functional operators, logical operators. So we will be discussing with different types of operators. Then we have the concept of selection statement, if then else and if. Similarly, we have the concept of loops structure, iteration, repetition, for to next, repeat until, while do and while. Okay, now
if you want to perform any tasks by a system, so you have to give some instruction or statements to the system. Then system will perform a task as per your given instruction. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Now, how can we give instruction or statement to the system? We have to write algorithm. Algorithm, it's a basically step by step instruction or steps. So it means if you want to perform any task by a system, you have to write an algorithm. An algorithm itself, step by step instructions or steps or statements, sorry, step by step instructions or statements. Now the question is that how can we write an algorithm? So algorithm can be represented in 3 different ways. Yes, first algorithm can be represented in the form of what? Flowchart. Yes. Now what we have the second way in order to write an algorithm, pseudocode. Is it visible to you? Yes, sir. Okay. And we have another way, that is programming. Okay. Now these steps, instructions or statements are represented in the form of symbols or pictorial form. Then what we have the technique, that is flowchart. Now, if you want to perform any tasks, and how can we give instruction or statements? By writing some statements. There's another way, by using the concept of pseudocode. Now, here we have another way, that is programming. In your course, we have 2 different languages, VB, Visual Basic, and Python. अच्छा, आपके स्कूल में कौन सी करवाई गई है? VB करवाई गई है, पाइथन? Python. ठीक है. Okay. Now, what's the difference between these 2 concepts, pseudocode or programming? Do you have any idea? Sir, pseudocode. जी बोले. जी, pseudocode में मतलब नंबर्स वगैरह होते हैं और प्रोग्रामिंग में अल्फाबेटिकली लिखा होता है. इसके अलावा? Okay. Pseudocode, let's suppose if you want to search a keyword cat, can you find it in English dictionary? Yes. Because such word is already defined in English dictionary, you can easily find it. But if you are searching the same word cat in Urdu dictionary, can you find it? No. No, because such word is not defined in Urdu dictionary. Similarly, when you are writing a programming language,
you have to strictly follow the rules or keywords. But in pseudocode writing, you don't follow any rules. फर्क क्या है दोनों के अंदर? pseudocode और प्रोग्रामिंग के अंदर आप pseudocode के अंदर फॉलो नहीं करते ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और रूल्स को और कीवर्ड्स को, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे आप विजुअल बेसिक में लिख रहे हो या पाइथन में लिख रहे हो, जैसे कि आपने पाइथन का किया है, तो पाइथन के अंदर प्रिंट करवाने के लिए एक कीवर्ड है प्रिंट। हेलो, ऐसे ही प्रिंट करवाता है पाइथन में जी। ठीक है। अगर मैं लेट सपोज प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं PINT प्रिंट, तो क्या हेलो प्रिंट हो जाएगा? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इस कीवर्ड को फॉलो नहीं किया, मिसमैच इनकरेक्ट कीवर्ड लिखा है, इनकरेक्ट कीवर्ड लिखा है, जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर जनरेट हो गया। और ये सिंटैक्स जनरेट जो हुआ है, ये बता कौन रहा है? आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपने पेपर 1 के अंदर पढ़े होंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो कंपाइलर ने क्या किया? कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर which translates your written high level language code into machine language. So if you don't follow keyword while you are writing programming concept, then language translator will be raised error, that is called syntax error. तो मेजर डिफरेंस ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप लिख रहे होते हैं तो आप जो है सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, कीवर्ड्स को फॉलो करते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकते कंप्यूटर से। जैसे हमने अभी यहाँ टास्क परफॉर्म क्या करवाया, प्रिंट करवाना था, तो जब मैंने प्रिंट की स्पेलिंग सही लिखी PRINT पाइथन के अंदर, तो क्या हुआ? वो प्रिंट हो गया हेलो। लेकिन जैसे ही मैंने स्पेलिंग मिसमैच लिखी, गलत स्पेलिंग लिखी, तो वो सिंटैक्स एरर जनरेट हो गया। लेकिन सूडो कोड के अंदर ऐसा नहीं। सूडो कोड के अंदर आप वही कीवर्ड्स लिख रहे होंगे जो नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं आउटपुट लिख सकता हूँ, आउटपुट कोटेशन मार्क में हेलो लिख दूं। इसके अलावा आउटपुट की जगह मैं प्रिंट भी लिख सकता हूँ, प्रिंट हेलो। और क्या ऑप्शन हो सकता है सूडो कोड के अंदर? राइट। तो CIs के अंदर आप तीनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप आउटपुट लिखना चाहें, चाहे आप प्रिंट लिखना चाहें, चाहे आप राइट लिखना चाहें, लेकिन ये कीवर्ड्स नहीं है, ये कीवर्ड्स नहीं है। बाय चांस ये कीवर्ड किसका बन गया? यहाँ पे पाइथन का बन गया। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो सूडो कोड, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो सिंटैक्स एरर इसमें जनरेट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपको CIs को फॉलो करना है, तो आपको सूडो कोड के अंदर भी जो कीवर्ड्स लिख रहे हैं वो सही स्पेलिंग लिखना जरूरी है। डिफरेंस क्लियर हो गया? यस सर। तो आप मुझे बताइए सूडो कोड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं अल्फाबेटिकली, और अगर मतलब वो गलत हो कीवर्ड्स जाए को तो फॉलो करना होता है, ठीक है। जी कीवर्ड्स को फॉलो करना होता है, जबकि सूडो कोड में नहीं करना होता। ठीक है, मतलब ये अगर एक गलत भी हो जाए तो वो चल जाएगा। ठीक है। और एक और चीज है, सूडो कोड टेल्स अस हाउ टू राइट code in any computer programming language. Pseudocode is a technique or method to write a source code in any computer programming language. ठीक है। लेट सपोज अगर मुझे विजुअल बेसिक के अंदर प्रिंट करवाना है, तो उसके अंदर मेरे पास क्या है? एक कीवर्ड होता है कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा, क्योंकि आप पाइथन फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको विजुअल बेसिक का कोड नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं।
कंसोल डॉट राइट लाइन और हेलो। तो कंसोल डॉट राइट लाइन का काम क्या है, हेलो को प्रिंट करवाना। अगर मैं ये कीवर्ड कंसोल डॉट राइट लाइन पाइथन में लिखूं तो क्या प्रिंट हो जाएगा हेलो? जी, अगर मैं नहीं। कंसोल डॉट राइट लाइन कीवर्ड जो है, इसका काम क्या है कंसोल डॉट राइट लाइन का, कि ये स्क्रीन, कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन, और राइट लाइन का मतलब होता है डिस्प्ले करना, शो करना। क्या शो करना? हेलो शो करना। तो अगर ये मैं पाइथन पे लिख रहा हूँ तो क्योंकि पाइथन के लाइब्रेरी के अंदर, पाइथन के अंदर लाइब्रेरी है, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक अपनी डिक्शनरी और लाइब्रेरी होती है, जहां पर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जाके कंपेयर करता है जो आपने रिटन सोर्स कोड लिखा है। तो अगर मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पाइथन में लिखा है तो पाइथन का जो कंपाइलर है वो कंसोल डॉट राइट लाइन को अपनी डिक्शनरी में चेक करेगा, उसे मिलेगा नहीं, मिसमैच होगा आपका वर्ड कीवर्ड, तो सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पाइथन का प्रिंट PRINT विजुअल बेसिक में लिखता हूं तो क्या हेलो प्रिंट हो जाएगा विजुअल बेसिक में? नहीं। नहीं, क्योंकि वो वर्ड विजुअल बेसिक की लाइब्रेरी में कीवर्ड डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो वो सिंटैक्स एक्सक्यूज मी एरर सर। जनरेट हो जाएगा। अच्छा, नाउ सर मैंने जी पूछें। जी सर मैंने अभी सेक के जी जी मैंने आपको सॉरी गलत बोल दिया था, पाइथन ही में विजुअल बेसिक ही कराया है। अच्छा, आपको विजुअल बेसिक करवाया, ठीक है, जी जी कोई जी। इशू नहीं है। आप जो भी आपको करवाया जा रहा है तो हम विजुअल बेसिक कर लेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। क्योंकि मैं दोनों ही ऑप्शन करवा रहा होता हूँ। तो किसी स्कूल में, अब क्योंकि मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, तो किसी स्कूल में विजुअल बेसिक करवाई जा रही है तो किसी स्कूल में पाइथन, तो कोई इतना मैटर नहीं करता। ओके, नाउ हाउ कैन वी राइट, ड्रॉ, फ्लो चार्ट, डिजाइनिंग, pseudocode, pseudocode writing और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइटिंग। अगर आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, डिजाइन करना है, सुडो कोड लिखना है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है, तो आपको दो चीजें का पता होना बहुत जरूरी है। पहला, कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज कंट्रोल स्टेटमेंट, और सेकंड जो है वो हमें क्या पता होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट अ डेटाबेस, डेटाबेस अलग चीज है और डेटा स्ट्रक्चर अलग चीज है। ये क्लियर है कि अगर आपको फ्लो चार्ट यस ड्रॉ सर। करना है या सूडो कोड लिखना है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है, तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके पास डेटा स्ट्रक्चर। पहले हम देखते हैं डेटा कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट क्या है। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास पहली जो चीज आती है वो आती है सीक्वेंस। क्या आती है? सीक्वेंस। सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम क्या चीज देखते हैं, इनपुट, आउटपुट। जैसे अभी हमने पाइथन और विजुअल बेसिक में प्रिंट करवाया था हेलो, तो वो किस सीक्वेंस में वो सीक्वेंस टेक्निक में आएगा, और सीक्वेंस में किस में, आउटपुट में आएगा। आउटपुट। टोटलिंग, एंड काउंटिंग। तो जब भी आप ये काम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप इनपुट करवा रहे हैं, चाहे आप डेटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं, आउटपुट करवा रहे हैं, या आप टोटल जनरेट कर रहे हैं नंबर्स का, या आप काउंटिंग कर रहे हैं, तो वो किस टेक्निक का पार्ट होगा, सीक्वेंस का। सीक्वेंस। दूसरी टेक्निक हमारे पास क्या है,
सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीजें हैं, एक इफ देन एल्स and if is ended with and if। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट अगर हमें लिखनी है तो उसके अंदर क्या होगा, एक टेक्निक क्या है, इफ देन एल्स एंड इफ। दूसरी टेक्निक आपको पता है? जी बेटा, दूसरी टेक्निक आपको पता है सिलेक्शन की? नहीं। दूसरी टेक्निक केस ऑफ अदरवाइज otherwise एंड केस and similarly if is ended with and if, so case is ended with and case। ठीक है, तो इफ देन एल्स एंड इफ यूज कर रही हैं या आप केस ऑफ अदरवाइज एंड केस यूज कर रही हैं तो वो किस टेक्निक का पार्ट होगा, सिलेक्शन स्टेटमेंट का, राइट। सिलेक्शन। एक और टेक्निक हमारे पास है, लूप्स, रेपिटेशन और आइटरेशन। ये एक ही चीज के तीन नाम है। आप लूप भी कह सकते हैं, रिपीटेशन भी कह सकते हैं और आइटरेशंस भी कह सकती हैं। इसके अंदर भी हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला जो है फॉर टू नेक्स्ट है, फॉर टू नेक्स्ट लूप। दूसरा हमारे पास है, जी बता सकती हैं आप दूसरा लूप? रिपीट अंटिल। रिपीट अंटिल या while, डू एंड व्हाइल। do and while। और थर्ड जो आपने अभी बताया है, रिपीट अंटिल। फॉर टू नेक्स्ट क्या है, बेसिकली काउंटिंग विदाउट कंडीशन, काउंटिंग विदाउट एनी कंडीशन, यानी इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं देनी पड़ती, सिर्फ आप काउंट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 इस तरह की काउंटिंग करेंगे, आइटरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें कोई हम कंडीशन नहीं देते। जिस लूप के अंदर आप कोई कंडीशन नहीं देते वो कौन सा लूप होगा, फॉर टू नेक्स्ट। फॉर टू नेक्स्ट। वाइल, डू एंड वाइल में हम कंडीशन देते हैं, काउंटिंग विथ कंडीशन, बट व्हाट कंडीशन, प्री कंडीशन। काउंटिंग विथ प्री कंडीशन, कंडीशन तो देंगे लेकिन वाइल, डू एंड वाइल में पहले कंडीशन देंगे, वाइल, डू एंड वाइल में पहले कंडीशन देंगे और फिर कंडीशन चेक होगी, पहले कंडीशन देंगे और फिर टास्क परफॉर्म होगा। रिपीट अंटिल में कंडीशन तो देंगे लेकिन पहले नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो काउंटिंग विथ पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो आपके पास सीक्वेंस हो, सिलेक्शन हो, आइटरेशन हो, वो किस टेक्निक का पार्ट है, कंट्रोल लूप्स। स्टेटमेंट। तीनों चीजों की बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप्स या रिपीटेशन या आइटरेशन, वो सब के सब क्या है, सीक्वेंस। सब के सब क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको हम वन बाय वन देखेंगे, सीक्वेंस को, सिलेक्शन को और आइटरेशन को फ्लो चार्ट के अंदर भी देखेंगे,
सूडो कोड के अंदर भी देखेंगे और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर भी देखेंगे, यानी विजुअल बेसिक के अंदर भी। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास ये तो जाया ही जा रहा है, रुक भी जाओ। ओके, नाउ डेटा स्ट्रक्चर, आइडिया है डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा जी? डेटा स्ट्रक्चर में आइडिया है सबसे पहली चीज क्या होगी? नहीं। डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज, आप फेमिलियर हैं, आपने पढ़ा हुआ भी है, वेरिएबल। ठीक है। सेकंड डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। थर्ड डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? एरे। लेकिन एरे कौन सा है आपके प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से? वन डायमेंशन एरे। अच्छा, मुझे बता दें, आप 2022 में ही अपीयर होंगे ना? जी सर, अगले साल में जून में। ठीक है, क्योंकि 2022 तक आप मई जून या अक्टूबर नवंबर तक प्रीवियस सिलेबस फॉलो होगा, और 2023 से जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यू सिलेबस के हिसाब से होंगे। तो न्यू सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। ओके, सबसे पहले हम चेक करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? लेट्स सपोज आप x equals to 2. Now what does it mean, this one x? This is a variable. Variable is a type of data structure which can hold a single value at a time. What we have the value of x right now? 2. 2. So it can hold a single value at a time, but it can be changed throughout the program. Variable की definition क्या है? Variable is a type of data structure which can hold a single value at a time, and its value can be changed throughout the program. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वेरिएबल की, आपको क्लियर हुई? यस सर। वेरिएबल क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसकी टाइप है एक डेटा स्ट्रक्चर की, जो कि एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है, लेकिन ये अपनी वैल्यू को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। नाउ दिस वन, this, sorry, what is this? yes, ये क्या है? 2. 2 तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। नो, वेरिएबल तो x है। वेरिएबल की वैल्यू। वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं लिटरल वैल्यू।
क्या बोलते हैं? लिटरल वैल्यू। लिटरल वैल्यू। एंड व्हाट डज इट मीन लिटरल वैल्यू? लिटरल वैल्यू आपकी डिजिट भी हो सकती है, यानी नंबर भी हो सकता है, और अल्फाबेट भी। करेक्टर भी हो सकता है, और स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। यानी कि डिजिट में लाइक 1 2 3 हो सकता है, करेक्टर में आपका ABC हो सकता है, और स्पेशल करेक्टर में हैश, क्वेश्चन मार्क, स्टार। ठीक है, तो लिटरल वैल्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वैल्यू नहीं है। सिर्फ डिजिट नहीं हो सकता, बल्कि डिजिट के साथ साथ करेक्टर भी हो सकता है और स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो लिटरल वैल्यू मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। लिटरल वैल्यू मीन्स एंड कांस्टेंट मे बी एनी डिजिट, लेटर, करेक्टर और स्पेशल करेक्टर। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आ जाए आप इस पे, ये क्या चीज है? जी बेटा, ये क्या है? वेरिएबल। नहीं, अभी मैंने इस किस पे सर्कल किया है, ये देखें, ये क्या इज चीज है? इक्वल्स टू। नहीं, ये इक्वल्स नहीं है। ये आपका इट्स अ टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, नाउ assignment is always done in flowchart, pseudocode, or any computer programming language from right to left. It means you can assign a value to a variable from right to left. Can we assign a value 2 equals to x left to right? No. No. In computer programming, pseudocode or flowchart, you cannot assign a value from left to right. This is incorrect assignment. Incorrect assignment. However, you can do in mathematics. आप ये mathematics में तो कर सकते हैं कि आप वैल्यू असाइन लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सुडो कोड में और फ्लो चार्ट के अंदर नहीं कर सकते। इनकरेक्ट असाइनमेंट होगी ये। सिमिलरली, एनी ऑपरेशन is done at the right side of an assignment operator, like a plus b equals to c and a plus b equals to c. Which statement is true? C equals to a plus b or a plus b equals to c. Which statement is true? Second one. Which one? A plus B is equals to C. Okay. Sorry, C is equals to A plus B. See, all the operations must be done at the right side of an assignment operator. All the From operations, right to left. ठीक है, all the operations जी, जी. must be done at the right side of an assignment operator. Then its calculated value will be assigned to a variable from right to left. So this is a proper assignment. But a plus b, calculated value will be assigned to a variable c from left to right. This is incorrect assignment, and this one is the true assignment. Okay, but are you clear? Yes. Okay, जी, जी. now we have different types of operators. First one, assignment operator. This one is the first operator. And second operator, arithmetic operator. Arithmetic
ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास क्या आएंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के ये स्टेरिक साइन। आप मल्टीप्लाई के लिए ये क्रॉस साइन यूज नहीं कर सकते। क्यों? इस क्रॉस का मतलब क्या है? वेरिएबल एक्स। इस क्रॉस का मतलब क्या है? वेरिएबल एक्स। वेरिएबल एक्स। तो आप ये यूज नहीं कर सकते क्रॉस। तो क्रॉस की जगह आपको क्या यूज करना होगा? स्टेरिक साइन या और स्टार साइन। इसी तरह डिवीजन के लिए आप स्लैश यूज करेंगे। ये वाला सिंबल आप नहीं यूज कर सकते। ओके। जी। पावर के लिए अगर मुझे 2 टू द पावर 2 लिखना है तो कौन सा सिंबल होगा? आइडिया है? एन। इसके लिए हमारे पास ये कैप का सिंबल होता है इस तरह का। देखा है ये सिंबल? नहीं। ये वाला सिंबल कैप बना हुआ नहीं देखा कीबोर्ड पे? जी जी जी। सिक्स कीबोर्ड के पे। सिक्स। तो ये वाला सिंबल पावर के लिए होता है, 2 टू द पावर 2, देन यू विल गेट द रिजल्ट 4। तो हमारे पास ये ऑपरेटर भी क्या है? इसको कहते हैं एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है, पावर के लिए यूज होता है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे और उसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो सिर्फ वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे और उसका रिजल्ट रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स में। ठीक है? जी। तो 2 इज लेसर देन 3, कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर बस ट्रू और फॉल्स बताते हैं। सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बताएगा। नाउ कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू। ट्रू। 2 is lesser than, condition is true. Now similarly 2 is greater than 3, then फॉल्स। false condition. Now 2 is lesser than or equals to 3. Now फॉल्स। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे? lesser than or equals to, lesser than or equal to। तो लॉजिक गेट्स में आप और कर चुकी हैं, और गेट कर चुके हैं लॉजिक गेट्स में। जी जी। तो और गेट में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 1। मतलब कोई भी एक इनपुट सिग्नल 1 हो तो आपको आउटपुट 1। तो यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ओवरऑल आपको कंडीशन क्या मिलेगी? ट्रू मिलेगी। तो आप मुझे ये बताइए, ट्रू। 2 इज लेसर ओके। देन इक्वल्स टू 3। 2 बराबर तो नहीं है लेकिन 2 छोटा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ओवरऑल कंडीशन क्या मिलेगी? ट्रू। तो ये क्या होगा? ट्रू। ट्रू। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करता हूं 2 इज लेसर देन इक्वल्स टू 2, अब ट्रू। अब भी ट्रू। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, इक्वल्स टू वाली। ठीक है? जी।
ओके, ये आपके पास हो गया लेसर देन। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी होता है। टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू। अब क्या होगा? ट्रू। ट्रू। ग्रेटर देन वाली तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन इक्वल वाली कंडीशन ट्रू है। ओके, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल आप मैथ्स में तो इस तरह बना देते हैं, ठीक है, ये नॉट इक्वल का साइन है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इस तरह का सिंबल नहीं बना सकते। तो इसकी जगह हमारे पास नॉट इक्वल की जगह लेसर देन और ग्रेटर देन है। इसका भी मतलब क्या है? नॉट नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू, क्योंकि नॉट इक्वल है। ओके, तो ये आपके पास ट्रू हो गई। लेकिन अब बताइए टू इज नॉट इक्वल्स टू टू। फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि नंबर क्या आ गया? बराबर आ गया। तो आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है रिलेशनल ऑपरेटर्स का। सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ देन एल्स, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस के अंदर बहुत ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। तो तीन टाइप्स हो गई, कौन कौन सी? एक आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ठीक ऑपरेटर है, और दूसरा रिलेशन हमारे ऑपरेटर। पास हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, थर्ड हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, एक और ऑपरेटर है हमारे पास। सही, कांस्टेंट का हिस्सा या फिर डाटा वेरिएबल का? ये अभी मैंने वेरिएबल को रोक दिया वहीं पर, ठीक है, जी जी। एक्स पर। अभी से वेरिएबल को छोड़ा, वेरिएबल को वहीं रोक दिया, और वेरिएबल के बाद मैं इसको समझाने लगा। किसको? असाइनमेंट ऑपरेटर को, कांस्टेंट। ठीक है। तो जी जब मैं जी जी। असाइनमेंट ऑपरेटर को समझाने लगा, तो फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ बाकी सारी टाइप्स को भी मैं कवर करता जा रहा हूँ, ताकि फिर मुझे बार जी। बार टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। फिर हम दोबारा अभी ओके। वेरिएबल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद जैसे ही हम जी। कवर कर लेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, फिर दोबारा हम वेरिएबल्स पे आ जाएंगे। ठीक अच्छा, है। चौथा हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास और, जैसे आप लॉजिक गेट्स करते हैं वैसे ही इसमें भी आता है, और, एंड, नॉट। ये तीन ज्यादातर यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सुडो कोड में और फ्लो चार्ट वगैरह में। और एंड नॉट, जो फंक्शन इसका लॉजिक गेट के अंदर है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर हमारे पास एक और ऑपरेटर है, और लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, फंक्शनल ऑपरेटर्स। फंक्शनल ऑपरेटर्स, जी इसमें आइडिया है आपको फंक्शनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? नहीं। ओके, फर्स्ट फंक्शनल ऑपरेटर हमारे पास इंटीजर, और इंटीजर का फंक्शनल ऑपरेटर क्या है? आई एन टी इंट। आई एन टी इंट, इंटीजर का फंक्शनल ऑपरेटर क्या है? आई एन टी इंट। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर है फंक्शनल का, हम ही देखते हैं, ये वन बाय वन देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। एक और ऑपरेटर है हमारे पास फंक्शनल ऑपरेटर,
आपके कोर्स वाला याद नहीं आ रहा मुझे, वेट थोड़ा चेक करने दो मुझे। याद आ गया, ओके। समय न्यू सिलेबस के अंदर चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं, तो अब बहुत सारे फंक्शंस नए आ गए। दूसरा आपके पास है डिफ फंक्शन, और डिफ फंक्शन को हम स्लैश से यूज करते हैं डिवाइड की तरह। एक और फंक्शन है आपके पास मॉडुलस फंक्शन, मॉड फंक्शन, और मॉड फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज साइन से। ओके, हम वन बाय वन, ये सिर्फ 3 फंक्शन है आपके कोर्स के अंदर। जो प्रीवियस सिलेबस है उसके अंदर इंटीजर फंक्शन है, डिफ फंक्शन है, डिफ फंक्शन डिवीजन के लिए यूज होता है, और मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन रिमाइंडर के लिए यूज होता है। वन बाय वन कर देखते हैं कैसे परफॉर्म होगा। नाउ इंटीजर ऑफ 4.0, integer of 4.2, integer of 4.5, integer of 4.9। जी, फर्स्ट वाला बताइए, इंटीजर। इंटीजर क्या करता है? इंटीजर ऑलवेज रिटर्न होल नंबर वैल्यू। व्हाट वैल्यू? होल नंबर वैल्यू। होल नंबर में जिसमें पॉइंट नहीं आता, ठीक है। होल नंबर वैल्यूज और दोस पॉइंट्स without having decimal point. Now integer of 4.0, what we have the result? क्या करेगा ये? क्या वैल्यू रिटर्न होल करेगा? नंबर में कन्वर्ट कर देगा। होल नंबर में तो क्या आना चाहिए इंटीजर ऑफ 4.0 का? 4। 4, ठीक है। आपके पास 4 आना चाहिए ना। इंटीजर ऑफ 4.2, 4। 4। इंटीजर ऑफ 4.5, 4। 4। एंड इंटीजर ऑफ 4.9, 5। क्या कहा आपने? 4। 4 या 5 का है? 5। 5। 5 का है। इसका काम इंटीजर का राउंड ऑफ करना नहीं है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? होल नंबर पॉइंट में के कन्वर्ट बाद की करना है। जितनी भी वैल्यूज है हम्म। उसको इग्नोर करना है, इन सब को हटा देगा, और खाली क्या बचा है? 4। 4। अच्छा, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, वेट करिए, ठीक है।
ओके, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तो इंटीजर ऑफ 4.9 क्या आएगा? 4. 4। अच्छा, अब हम डिफ करते हैं। अच्छा, अगर फंक्शन का नाम ना दिया, फंक्शन का नाम ज्यादातर दिया जाता है तो आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, और अगर फंक्शन का नाम नहीं स्पेसिफिकली बताया गया और डिवीजन परफॉर्म करना है तो आप स्लैश से करेंगे। क्या मतलब? लेट्स सपोज 12 डिवाइडेड बाय 12 डिफ डिवाइडेड 12 डिफ 3, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 12/3। क्या आंसर आएगा इसका? जी बेटा, क्या आंसर 4. आएगा? 4। So 3 multiplied by 4, 12. 3 4s are 12. Then we have the remainder value 0. So इसका भी 4 आ रहा है, और इसको अगर स्लैश कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि अगर फंक्शन का नाम दिया है तो फिर आप खाली फंक्शन का नाम लिखिएगा। ये सवाल में दिया होता है। हम जब अभी करेंगे पेपर्स, पास पेपर्स, सर वापस रिपीट करेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि फंक्शन का नाम अगर आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम डिव है, तो आप डिवी जी. लिखेंगे, DIV लिखेंगे, उसकी जगह स्लैश नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर फंक्शन Okay. का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है और डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर आप स्लैश यूज कर दिएगा। ठीक है? Okay. स्पेसिफिकली अगर फंक्शन का नाम बताया जा रहा है तो आपको फिर वही फॉलो करना, और अगर नहीं बताया जा रहा तो उसकी जगह साइन ऑफ ऑपरेटर यूज कर लीजिएगा। जैसे डिफ की जगह साइन ऑफ ऑपरेटर क्या है? स्लैश। ओके, फिर हमारे पास 12 मॉड फंक्शन, MOD मॉड 3, और मॉड का साइन ऑफ ऑपरेटर क्या है? परसेंटेज। मॉड क्या करता है? रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। सो 12 मॉड 3 क्या रिटर्न करेगा? 0. 0। ठीक है, तो इसका 0 आंसर आएगा, इसका भी 0 आएगा। ओके, चल लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 13/3 या 13/3, तो डिवाइड करके चेक करते हैं पहले। 13, 3 4s are 12, remainder 1.33339, then again 1 0 and so on, 4.33. Okay, now 13 slash या 13 div, इसका आंसर क्या आ रहा होगा? 4.33 and so on. इसी तरह इसका भी 4.33 so on. लेकिन अगर मैं 13 div 3 के साथ एक फंक्शन एक और लगा दूं, इंटीजर, तो अब क्या आना चाहिए? जी, क्या आंसर आना चाहिए? 4. 4 आना चाहिए। पॉइंट की जितनी भी वैल्यूज होंगे भी पॉइंट के बाद की, उन सबको हटा देगा और खाली आपको क्या रिटर्न करेगा? 4। ठीक है? अच्छा, पास पेपर्स में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उन्होंने, तो हमेशा इस तरह से पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिफ है वो फंक्शन इंटीजर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इंटीजर की तरह। Integer. हाँ, लेकिन वो एग्जाम्पल जब देंगे तब आप
उस डिफ को इंटीजर की तरह परफॉर्म करेंगे। मतलब 13 डिफ 3 है, और अगर उन्होंने एग्जाम्पल दी क्वेश्चन के अंदर कि 13 डिफ 3 क्या रिटर्न कर रहा है, 4.33 नहीं बल्कि 4, तो इट मींस कि ये डिफ ने किस तरह काम किया है, जैसे इंटीजर फंक्शन काम करता है। ठीक है, पॉइंट के बाद की जी सारी वैल्यूज को उसने इग्नोर कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन ये एग्जाम्पल आपको देखनी पड़ेगी कि डिफ एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है या फिर डिफ फंक्शन जो है वो डिवाइड करने के बाद इंटीजर का काम कर रहा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये पूरा काम जो है वो एग्जाम्पल में इससे खाली करवा देते हैं। ठीक है, जी तो हमने अभी जो आज जो कवर किया है, पहले तो ये देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स। एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो 3 चीजें हमारे पास, 3 वेज हैं, फ्लो चार्ट, सुडोकोड और प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग भी आपके CIs के अंदर ऑप्शंस हैं कि यू कैन अटेम्प्ट इधर राइटिंग विजुअल बेसिक और पाइथन। और सुडोकोड मोस्टली कैंडिडेट सुडोकोड से करते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों को लिखने के लिए या ड्रॉ करने के लिए फ्लो चार्ट को आपको क्या पता होना चाहिए, कंट्रोल स्टेटमेंट और डेटा स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप्स, रिपीटेशन और आइटरेशंस। सेकंड जो है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और एरे। तो अभी हमने वेरिएबल से स्टार्ट लिया था, लेकिन वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स है। वो रूल्स, अच्छा मुझे बताइए, अभी आप इन क्लास को वाइंड अप कर दें या अभी आप अवेलेबल हैं? सर अभी अवेलेबल है। अभी हैं, ओके। जी सुडोकोड की आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा इसको आप पढ़ लें और इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लें। जी सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, विदाउट बीइंग बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, यानी कि जी यहाँ हम रूल्स बाउंड नहीं है और सुडोकोड, लेकिन हम वही कीवर्ड्स यूज करते हैं सुडोकोड में जो नॉर्मली किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में यूज हो रहा होता है। ठीक है, जी इसके बाद यहाँ हमारे पास 2 हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। ये कोड जो आपको नजर आ रहा है ये विजुअल बेसिक का कोड है। ठीक है, कौन सा कोड है ये, विजुअल बेसिक। जी विजुअल बेसिक। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल्स के रूल्स पढ़ते हैं। वेरिएबल्स डेफिनेशन तो बता चुका हूं कि इट कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू एट अ टाइम बट इट कैन चेंज इट्स वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। रूल्स क्या है, अच्छा ये जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ मोस्टली हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सूडो कोड के अंदर ये स्टैंडर्ड रूल सब पे अप्लाई होता है कि वेरिएबल्स के नाम किस तरह के होंगे।
ठीक है, पहली चीज है नेमिंग कन्वेंशन, यानी पता होना चाहिए कि आपने वो जो वेरिएबल का नाम रखा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सपोज स्टूडेंट का नाम रख रहे हैं आप, तो आपने वेरिएबल का नाम उसी जैसा रखा, स्टूडेंट नेम। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट का जीआर नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर यूज कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल वैसा ही नाम रखा, स्टूडेंट जीआर नंबर। इसी तरह स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, तो आपने क्या लिखा, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत जरूरी है कि जब प्रोग्रामर अपना कोड महीनों के बाद भी खोले, काफी अरसे बाद भी खोले, तो वो जब पढ़े वेरिएबल को तो उसे पता चल जाए कि ये वेरिएबल किस पर्पस के लिए उसने लिखा था। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर। दूसरा रूल क्या है वेरिएबल का नाम रखना, कि यू कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट और विथ अंडरस्कोर साइन। ये क्लियर है बेटा? आर यू देयर बेटा? यस आयशा, आप सुन रही हैं? तो बेटा हम बात कर रहे थे कि हमारा जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और रखते हैं, तो वो नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कि वो वेरिएबल किस चीज के लिए काम कर रहा है। लेट्स सपोज स्टूडेंट का नाम है, तो स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट का जीआर नंबर है, का वेरिएबल हम बना रहे हैं, तो स्टूडेंट जीआर नंबर। इसी तरह स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, तो स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम को कितने अरसे बाद खोलें, तो हमें ये पता हो, जब हम वेरिएबल्स को पढ़ रहे हो तो हमें ये पता हो कि ये वेरिएबल किस पर्पस के लिए हमने लिखा था। ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशन कहलाता है। दूसरा क्या है कि यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ठीक है, डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस, डोंट यूज कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। तो मोस्टली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं। और आखिरी इतना लंबा नाम कोई भी नहीं रखता, नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होती कि इतना 255 कैरेक्टर्स का हम वेरिएबल का नाम लिखें। ठीक है, तो ये रूल इतना कोई खास नहीं है। तो आपके पास पहला क्या है, नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस, डोंट यूज keywords or reserved words. Now let's check which identifier is true. Okay, identifier, अच्छा आइडेंटिफायर मैं बता देता हूँ कि आइडेंटिफायर क्या होता है। पहली चीज, आइडेंटिफायर इज अ डेटा स्ट्रक्चर that identifies a value.
that identifies a literal value. ठीक है, उस आइडेंटिफायर का में जो आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, चाहे वो कांस्टेंट का नाम हो, चाहे वो एरे का नाम हो, ठीक है, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे वो प्रोसीजर का नाम हो। थोड़ा सा मैं आगे निकल गया हूं, इस चीज को छोड़ दीजिएगा, ये ऑप्शनल है अभी। वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम, एरे का नाम, इसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। ओके, अब हम रूल चेक करते हैं। पहला हम रूल लिखते हैं, लेट्स सपोज नाम। असाइनमेंट में बिल्कुल सही कर रहा हूँ, असाइनमेंट गलत नहीं है, असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट ही कर रहा हूँ, उसमें गलती नहीं है। Okay, now let's check. Now, which identifier is true? First one, true or not True. true? Because it can start with Characters. letter. Second one, True. true. Num underscore two. Third one, True. और से देखिए। जी सर, आपने कहा था ना अंडरस्कोर से शुरू कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, थर्ड। फॉल्स। फॉल्स क्यों है? नॉट ट्रू। हाँ, वो क्यों है? तीसरा वाला फॉल्स क्यों है? अंडरस्कोर यूज नहीं किया है। तीसरे वाले में स्पेस दे दी है, एंड स्पेसेस आर नॉट अलाउड। स्पेसेस आर नॉट अलाउड सर in between letters of an identifier name. Spaces not allowed in between letters of an identifier name. तो मैंने क्या किया है कि तीसरे वाले आइडेंटिफायर के अंदर स्पेस दे दी, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। फोर्थ वन, ट्रू। ट्रू, because you can start with underscore. अंडरस्कोर। 2 num equals to 2. ट्रू। हमने अभी रूल पढ़ा है, ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर सही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? सर वैसे अगर जनरली कैरेक्टर्स की बात कर रहे होंगे तो इसमें डिजिट्स वगैरह आएंगे या फिर नहीं? डिजिट आया ना इसमें, नम अंडरस्कोर 2 में आया डिजिट। देखिए, डिजिट्स विल बी फॉलोड, बट योर फर्स्ट आइडेंटिफायर नेम लेटर letter must be alphabet. Okay? You cannot start with a digit.
Okay. So this one is incorrect. Now num dollar equals to 2, Not true. क्योंकि हमने स्पेशल करेक्टर यूज Special कर दिया. character use किया है. Output equals to 2. Not true क्योंकि keyword use किया है. कीवर्ड यूज कर लिया तो not true. Last one. Not true. क्यों? Keyword use किया है. गौर से देखें. True क्योंकि to mention है. अगर मैं CAT कैट लिखता हूँ जी. तो इंग्लिश डिक्शनरी में आराम से मिल जाएगा क्योंकि वो वर्ड डिफाइन है इंग्लिश डिक्शनरी में. लेकिन अगर मैं CAT कैट 2 लिखता हूँ वो मिलेगा? नहीं. क्योंकि कैट 2 तो कोई वर्ड ही नहीं है, रिजर्व वर्ड ही नहीं है, कीवर्ड ही नहीं है. तो आउटपुट 2 जो है जी. वो क्या कीवर्ड है? अब वो कीवर्ड नहीं रहा. नहीं. ठीक है. आउटपुट इज रिटन विद 2. जी जी 2 इसके साथ 2 ज्वाइन होंगे. ठीक है. तो फिर अब ये कीवर्ड नहीं रहा आउटपुट 2, तो ये जो है सही है. ठीक है. आउटपुट 2 इक्वल्स टू 2. तो सारे रूल्स आपको समझ में आ गए बेटा कि जी. करेक्ट आइडेंटिफायर नेम. और मजे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसके अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर यही रूल्स यूज होते हैं. स्टैंडर्ड रूल है ये. ठीक है. सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अच्छा, दूसरा, अभी हमने इक्वल साइन की बात की थी. तो इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा था. इस इक्वल साइन को हम इस एरो से भी कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. एरो की डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट. यानी टू literal value is assigned to a variable from right to left. तो इसमें परेशान नहीं होगा. ये CIs ने अब दोनों अलाउ कर दिया है. इसको भी यूज करें, इसको भी यूज करें. ठीक है. ओके. तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप एरो बनाएं या इक्वल साइन बनाएं. दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन. डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन. Remember that declaration or initialization must be done at the beginning of the pseudocode or computer programming language. I am repeating, declaration and initialization must be done at the beginning of the pseudocode or computer programming language. आप हमेशा डिक्लेरेशन सबसे ऊपर करेंगे. जब भी आप सूडो कोड लिख रहे हैं या कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उसके लिए आप डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन सबसे ऊपर करेंगे, फिर आप बाकी सूडो कोड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे. ठीक है. ओके. नाउ हाउ कैन वी डिक्लेयर. अच्छा, इससे पहले डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को पढ़ने से पहले आपको डेटा टाइप. अच्छा, डेटा टाइप इज ए डिफरेंट थिंग. अभी हम डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा है? वेरिएबल. डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है? वेरिएबल. और अब मैं बता रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, अब मैं बता रहा हूँ डेटा टाइप. तो डेटा टाइप इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर. इंटीजर और स्ट्रिंग वगैरह होते हैं. जी जी. तो ये मिक्स नहीं करिएगा. वो डेटा स्ट्रक्चर है और ये क्या है? डेटा टाइप्स. डेटा टाइप.
और डेटा टाइप्स में आगे में आपके पास लिटरल वैल्यू लिख देता हूँ, लिटरल्स। ओके, फर्स्ट आपके पास इंटीजर, रियल, and character, string, boolean, और क्या है? Okay, now let's see literal value. अच्छा, मैं आपको ये मैच करना होगा, ठीक है? मैं डिफरेंट लिटरल वैल्यूज लिख रहा हूँ, वो आपको खुद मैच करना होगा। जी, 12.8 रियल नंबर, 12 पॉइंट रियल नंबर, और 12.8 स्ट्रिंग, रीजन, क्योंकि उसमें कोटेशंस हैं। yes, literal value is always a string, literal value is always enclosed with a double quotation mark, ठीक है? That's why this one is a string. 12 इंटीजर, integer, u, स्ट्रिंग, u, कैरेक्टर। character literal value is enclosed with a single quotation mark, okay? जी जी। And then Pakistan, स्ट्रिंग, string, 12.0 रियल नंबर, real, false, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, string, reason again it is enclosed with, डबल कोटेशन मार्क, and last one कैरेक्टर, false, last one false. It's a sequence of characters, so false is written without any quotation mark, single quotation mark or double quotation mark. What should be? विदाउट कोटेशन मार्क। विदाउट कोटेशन मार्क भी है और प्लस सिंगल कोटेशन मार्क भी नहीं है, डबल कोटेशन मार्क भी नहीं है। अगर डबल होता तो स्ट्रिंग होता, ठीक है, जैसे ऊपर वाला है,
और अगर करेक्टर होता तो एक जी। सिंगल ही करेक्टर होता। ठीक है, जी। तो अब क्या होना चाहिए इसे? बूलियन से आप फेमिलियर नहीं है बूलियन? बेटा? बूलियन जो है वो आपके पास नहीं या नहीं सर, बूलियन का नहीं पता। बूलियन या तो आपके पास ट्रू होता है या फॉल्स होता है। फॉल्स। ठीक है, तो लास्ट वन वाला क्या है? ओके। ठीक है, अच्छा एक और नंबर मैं लिखता हूँ, इसको आप आइडेंटिफाई करिएगा। जे लास्ट वन, कैरेक्टर। करेक्टर। करेक्टर के लिए जरूरी नहीं है कि वो खाली लेटर ही हो, वो डिजिट भी हो सकता है और स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है, बट सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही होना चाहिए करेक्टर में, यानी कि ये वाला भी आपका करेक्टर हो सकता है। और इसके अलावा अगर मैं खाली ये लिखता हूं तब भी ये क्या होगा? करेक्टर ही कैरेक्टर। होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, करेक्टर में बी डिजिट, लेटर और स्पेशल करेक्टर, बट इट इज enclosed with a single quotation mark. ऑलराइट? जी। अच्छा, अब इसको याद रखिएगा, डेटा टाइप्स और लिटरल्स को याद रखिएगा। Now, how can we declare a variable or identifier name? Declaration is always written with identifier name along with its data type. Declaration, it is always written with its identifier name and identifier name along with its data type. Along with its data type. But you have to use its keyword for declaration, declare, in pseudocode. In pseudocode मतलब डिक्लेरेशन करवाने के लिए आपको जरूरी है pseudocode के अंदर एक कीवर्ड लिखेंगे, वो कीवर्ड क्या होगा? डिक्लेयर। डिक्लेयर। ठीक है, और डिक्लेयर के बाद स्पेस देने के बाद आप उस आइडेंटिफायर का नाम लिखेंगे। लेट सपोज आइडेंटिफायर का नाम लिखता हूं कंट्री नेम, कंट्री। अच्छा, आइडेंटिफायर के जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कंट्री अंडरस्कोर नेम, देन प्लेस डबल कॉलन, then place or put colon. And what should be its data type? Relevant data type along with its data type. आइडेंटिफायर्स नेम। ठीक है, आइडेंटिफायर नेम तो कंट्री नेम हो गया। ठीक है, जी। अब उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? अभी पढ़ा है हमने, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे? स्ट्रिंग। और सर वो डबल कोटेशन मार्क? वो सेपरेट करने के लिए सही। आइडेंटिफायर नेम को और उसकी डेटा टाइप को सेपरेट करने के लिए हम बीच में कॉलन लगाते हैं। ठीक है, जी। नाउ राइट अ कीवर्ड, दिस वन इज द कीवर्ड declare and this one is identifier name, identifiers name
and this one is data type, and overall this process It's called declaration. ठीक है बेटा। जी सर। और इनिशियलाइजेशन क्या है? उसकी वैल्यू सेट करना, इनिशियलाइज करना वैल्यू, इनिशियलाइजेशन। तो आफ्टर डिक्लेरेशन यू कैन यूज identifier, or you can use this identifier later on in your pseudocode or programming language, but you have to declare an identifier along with this data type first. ठीक है? अब इसके बाद मैं इनिशियलाइजेशन कैसे होगी, इसी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करते हैं using the same identifier name, country underscore name, and we set the value of own country, that is Pakistan. So what we have the value of country underscore name? Pakistan. ठीक है? So this is the process of initialization. This is the process of initialization. ठीक है? जी। जो डेटा टाइप आप सेट करेंगे उसी हिसाब से उसकी लिटरल वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेट्स सपोज मैंने अगर ऊपर आइडेंटिफायर की डेटा टाइप इंटीजर रखी है, तो कैन वी इनिशियलाइज रियल वैल्यू इनटू द सेम वेरिएबल? जब आप रिपीट करेगा। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डिक्लेयर num colon its data type integer. So we are using the same variable name num, and how can we initialize num equals to 2.8? So can we initialize this value 2.8 into num? No, because its data type is integer. ठीक है? Integer can hold only whole number value. So how can we initialize real value into the same variable? ठीक है? तो आप जो ऊपर डिक्लेयर करेंगे आइडेंटिफायर नेम और उसकी जो डेटा टाइप बताएंगे उसी हिसाब से ही आप वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हमें इनिशियलाइज भी सही वैल्यू करनी होगी। हाँ, ये कर सकते हैं हम, नाम equals to 2. So this one is the correct assignment or initialization. ठीक है? तो बेटा आज की क्लास में अगर आपको कुछ पूछना हो जो नहीं आया हो समझ में, ठीक है, काफी चीजें पढ़ ली हमने। सर जो आपने रिकॉर्डिंग किया आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं वापस एक बार गो थ्रू कर लूंगी। रिकॉर्डिंग तो पता नहीं हो रही थी या नहीं हो रही थी। एक चीज हो सकती है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी सर, वो मैंने ले लिया। अच्छा, तो मैं चेक कर लेता हूँ, एंड करता हूँ। अगर देखें मैं एंड करने पर ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो मैं आपको कैसे शेयर करूँगा? व्हाट्सएप करूँगा, ठीक है? जी जी ओके, मैं एंड करता हूँ। अगर कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। सब क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। ओके, कौन पढ़ा? सर आपसे एक और चीज पूछनी थी जी। सर कंप्यूटर तो बहुत सारे, मतलब आप जब चले गए थे उसके बाद बहुत सारे टीचर्स चेंज हुए थे, इस वजह से सेक्शन 2 वैसे भी कॉम्प्लेक्स होते थे तो समझ में नहीं आ रहा था। सही, क्या पूछना चाह रही थी आप, जरा बताएं। जी सर, नहीं मुझको आपसे पूछना था कि जो पेमेंट होगी वो मतलब इजी पैसा पर जैस कैश के थ्रू करानी?
मतलब उसका वो पूछ रही थी। नहीं आया समझ में, फिर से दोबारा बोले। सर मैं कह रही हूँ कि जो पेमेंट होगी वो किस तरह से आपको मैं अकाउंट नंबर करूँ? दे दूंगा, अकाउंट नंबर दे दूंगा, जी आप जी, उसमें ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए सर। ठीक है। जी, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।